The question is, what are the limitations of citizens charters in India and how can their effectiveness be improved to enhance the delivery of public service? You have to discuss within 150 words limit. So this is a 10 marker question. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. We have already discussed whenever a question is asked in mains under 10 marks, you have to answer within 150 words and the time limit that you can dedicate, you may say the maximum time that you can dedicate to such answer is 7 minutes. So keep in mind the time limit and write a very precise answer. If you'll see the syllabus of General Studies 2, governance, you will find topics such as important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, model successes, limitations and potentials, and citizens charters. So we have already told you if whatever terms or words you see in the main syllabus, please make small notes on such topics. You can find direct questions based on. Now the first thing we are going to do is to introduce the question to the examiner. That is what we do in every question. तो आपको क्या करना है कि you can write a basic definition about citizen charter. देखिए citizen charter में आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो citizen charter एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनिमम सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज लिखती है जिसको वो डिलीवर करेगी इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. यू मे से कि a citizen charter is a basic minimum document जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेट करती है कि we are going to provide such services in such limited time. What is going to be the quality of service and what is going to be the duration of the service. तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये citizen charter basically एक declaration है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इतने level of quality of service को हम जो है adhere करेंगे and we will do it in a limited period of time. अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है? द सिटीजंस गेट अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे एक पासपोर्ट ऑफिस है, तो पासपोर्ट ऑफिस अगर एक सिटीजन चार्टर बनाती है और वहां पर लिखती है कि after doing the document verification they are going to process your passport in 15 days. So what they are saying कि they are going to process the passport, so that is the basic minimum service they are going to do and in 15 days, तो basically that is the time. तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, सिटीजन्स को क्लैरिटी रहता है कि what they are going to expect from such organization और in case of failure आप जो है सिटीजन्स जो है वो एक्शन ले सकते हैं. तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल गवर्नेंस बहुत सुधरता है और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो दिस इज द नीड ऑफ द सिटीजन चार्टर, दिस इज द यूज ऑफ द सिटीजन चार्टर. तो अब सिटीजन चार्टर का क्या है डेफिनेशन? यू कैन फाइंड वेरियस डेफिनेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है, IMF ने दिया है, इंडिया में बहुत सारे NGOs ने दिया है, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है. तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लेकर यहां पर बता सकते हैं और एग्जामिनर को बता सकते हैं कि यू नो व्हाट इज सिटीजन चार्टर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल है कि क्या 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 इंक्लूड करता है सिटीजन चार्टर, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, consultation, equality and accessibility, and you can write a perfect definition of citizen charter. Now moving on to the next part, the next comment of the question was what are the limitations of citizen charter. तो limitations क्या है चलिए हम लोग करते हैं, अच्छे से समझते हैं because we are going to answer this question within 150 words, so you have to use very precise words. यू हैव टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं है कि अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, डेटा नहीं डालें, आपको डालना है लेकिन यूज प्रिसाइज वर्ड्स, क्योंकि अगर आप वर्ड्स और सेंटेंसेस बहुत ज्यादा लंबा लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू एक्सीड द वर्ड लिमिट एंड दैट इज गोइंग टू फेच यू पेनल्टी मार्क्स. ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड भी नहीं करें और उससे कुछ कम भी ना लिखें. अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो वेरियस लिमिटेशन है सिटीजन चार्टर का इन इंडिया. क्या क्या है? सबसे पहले क्या है, देखिए लैक ऑफ पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म. देखिए सिटीजन चार्टर को कहा जाता है फ्रेम करने वक्त मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए. मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है पता है? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सिटीजन चार्टर क्यों बनाती है? क्योंकि सिटीजन्स को क्वालिटी सर्विस मिल पाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े उस ऑर्गेनाइजेशन का. लेकिन होता क्या है कि उस सिटीजन चार्टर को फ्रेम करते वक्त ही कि इसमें क्या मिनिमम क्वालिटी ऑफ सर्विस होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, इसमें
ये एक पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं बन पाता है, इसमें सिटीजन्स का फीडबैक नहीं लिया जाता है, बाकी स्टेक होल्डर्स का फीडबैक नहीं लिया जाता है, तो ये क्या करता है, ओवरऑल हैम्पर कर देता है इफेक्टिवनेस। किसी भी कंट्री में जहां पे बहुत अच्छा गवर्नेंस है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पर ये जो है एक तरह से नेसेसिएट किया जाता है कि वाइल फ्रेमिंग द सिटीजन चार्टर देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो आपके सिविल सोसाइटीज हो, गवर्नमेंट हो या सिटीजन्स हो। द सेकंड लिमिटेशन है जो इंडिया में सिटीजन चार्टर को लेके, दैट इज पुअर डिजाइन एंड कंटेंट। देखेंगे क्या मेनी सिटीजन चार्टर लैक मीनिंगफुल एंड कंसाइज कंटेंट। देखिए सिटीजन चार्टर बनाना एक दूसरी बात है और उसमें प्रिसाइज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बारे में बताना इज अ डिफरेंट। आप सिटीजन चार्टर एक कॉमन सा सिटीजन चार्टर बना सकते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सच सर्विसेज, वी आर गोइंग टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, बट क्या वो कंसाइज कंटेंट है उसमें? कंसाइज कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको बताना है, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा सिटीजन चार्टर बना देते हैं तो क्या होगा, सिटीजन्स को समझ में भी नहीं आएगा और उस केस में क्या होता है, फेलियर हो जाता है एंड एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस बच जाते हैं अकाउंटेबल होने के लिए। तो यहां पर क्या है कि आपको मीनिंगफुल, प्रिसाइज एंड कंसाइज कंटेंट बनाना है ताकि सिटीजन्स को भी क्लैरिटी रहे कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया में मेनी ऑफ आवर सिटीजन्स डोंट नो अबाउट द सिटीजन चार्टर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या आप वहां पर जाके पढ़ते हैं कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डू फॉर यू और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ज्यादा जो है एक इंडिया में फ्लॉ है कि सिटीजन डोंट नो देयर, यू मे से दे आर नॉट अवेयर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू डू फॉर देम। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना है क्योंकि इंडिया में काफी कम है। उसके बाद रेयर अपडेट्स। देखिए क्या है, सिटीजन चार्टर इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑलरेडी स्टेटेड देयर सिटीजन चार्टर। लेकिन हो क्या रहा है कि ओवर द टाइम जो सर्विसेज का जो नीड है दैट इज चेंजिंग। ठीक है, सर्विस चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली इंटरनेट बहुत ज्यादा आ गया है एंड डिफरेंट सर्विसेज में जो है वो चेंजेस का जरूरत है। पर क्योंकि बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का जो पोस्ट सिस्टम है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो सर्विसेज हैं दैट आर ओल्ड और अभी जो न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से सिटीजन्स चार्टर अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा है क्या, रेयर अपडेशंस है। यहाँ पर रेयर अपडेशंस की वजह से क्या होता है कि आप अगर न्यू सर्विसेज के अनुसार अपने सिटीजन्स चार्टर को चेंज नहीं करेंगे तो अगेन आप जो है अकाउंटेबिलिटी से बच जाएंगे और जो है आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिर ट्रांसपेरेंसी का लैक होगा और आप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से जो है वो बच जाती है अकाउंटेबिलिटी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें तो हमने देखा यू कैन राइट अ सेपरेट पॉइंट फॉर इनसफिशिएंट कंसल्टेशन। वी हैव ऑलरेडी यूज्ड यू मे से अ पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म, पर आप एक इनसफिशिएंट कंसल्टेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एंड यूजर्स जो कि सिटीजन्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और इनको एडिक्वेटली कंसल्ट नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ सिटीजन चार्टर। तो ये एक अलग से आप पॉइंट बना सकते हैं कि इनसफिशिएंट कंसल्टेशन, इनसफिशिएंट डिस्कशन होता है ओवर द सिटीजन चार्टर। उसके बाद अनडिफाइंड मेजरेबल स्टैंडर्ड्स। अब देखिए मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने ऑलरेडी कहा कि सिटीजन चार्टर में ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है। अगर आप लंबा सा यू हैव रिटन दी सेंटेंसेज एंड लॉन्ग सेंटेंसेज but you have not clearly stated what measurable standards you are going to maintain, what services you are going to provide, in which time, in how much time you are going to provide such services। तो यहाँ पर अगेन इस चीज का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ और इसकी क्लैरिटी के वजह से क्या होता है, सिटीजन चार्टर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। इसके बाद देखिए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन शो लिटिल इंटरेस्ट इन अडेयरिंग टू देयर सिटीजन चार्टर। ये डेफिनेटली एक बात है कि इवन उनका सिटीजन चार्टर प्रिसाइज है और बाकी सब चीज भी है, लेकिन आपको क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट नहीं है, इंटेंट नहीं है, वहां पर जो वर्कर्स हैं, जो वहां पर जो आप बोल सकते हैं जो रेस्पॉन्सिबल पीपल हैं, उनको ये कोई वो लिटिल इंटरेस्ट शो करते हैं इन अडेयरिंग टू दी सिटीजन चार्टर। तो ये भी है और यहाँ पर क्या है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि कंपनसेट सिटीजन को करे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ऑब्वियसली रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा ऐसा फोरम्स क्रिएट किए गए हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंट टू द सिटीजन चार्टर। तो लेकिन फिर भी अभी भी स्टिल दी ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू मच इनर्शिया इन दी यू मे से दी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजन चार्टर। द लास्ट पॉइंट यू कैन राइट इज यूनिफॉर्मिटी इन चार्टर्स। क्या है देखिए, एक अगर आप देखेंगे देयर इज अ टेंडेंसी टू हैव अ यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर फॉर ऑल ऑफिसेज अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कोई एक पेरेंट मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो डिपार्टमेंट क्या करती हैं कि वो एक ही जैसा सिटीजन चार्टर बना देती है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट लोकेलिटीज में काम करती हैं, लेकिन वहां पर के रादर देन एड्रेसिंग टू दी लोकल इश्यूज की लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, वो एक कॉमन सा सिटीजन चार्टर बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाता है। सिटीजन चार्टर हमेशा जो है
वो लोकल पॉपुलेशन, जिस भी पॉपुलेशन को वो सर्व कर रही है उसके अनुसार फॉर्मुलेट होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर से क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोकल इश्यूज एड्रेस नहीं हो पाते। हो सकता है कि लोकल में रिक्वायरमेंट कुछ और हो, लेकिन वो सिटीजन चार्टर जो है वो उस चीज को डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है हमारा पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है ऑफ सिटीजन चार्टर। नाउ अगर हम लोग बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस। आप जो है इसको हब एंड स्पोक मॉडल में भी बना के लिख सकते हैं टू यू मे टू सेव वर्ड्स, और जो है अच्छा लगेगा देखने में, तो इस चीज को आप ध्यान में दे सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट इज इफेक्टिवनेस। आप कैसे इंप्रूव करेंगे ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज? तो आप क्या करिए, क्लियर सर्विस स्टैंडर्ड रखिए। ठीक है, सर्विस स्टैंडर्ड को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। Citizen Charter should clearly define the expected service standards and commitments of government departments और organizations। हमने यही बोला ना कि आपको क्लियर स्टैंडर्ड रखना है, लंबे लंबे आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, लॉफ्टी जो है आप बोल सकते हैं लॉफ्टी कमिटमेंट्स नहीं बनाने हैं। सिर्फ आपको ये बताना है सिटीजन को कि आप किस लेवल ऑफ सर्विस को डिलीवर करने वाले हैं और कितने टाइम में करने वाले हैं। एक एग्जांपल जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैन स्पेसिफाई दैट द ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड विद इन 15 डेज। हमने पासपोर्ट ऑफिस का एग्जांपल लिया, आप ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये बोले कि आफ्टर डूइंग ऑल द टेस्ट दे विल प्रोसेस द ड्राइविंग लाइसेंस इन 15 डेज। तो दिस इज द सर्विस स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो दी टाइम लिमिट किसमें वो ये काम करने वाले। उसके बाद वी कैन से द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट दैट कैन इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर इज इफेक्टिव ग्रीवांस रिडर्सल। ग्रीवांस रिडर्सल का मतलब क्या हुआ? इन केस द सिटीजंस आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस डिलीवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन रेज देयर कंसर्न ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड दैट कंप्लेन इज एड्रेस्ड विद इन टाइम लिमिट। देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हैविंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपना ग्रीवांस पुट अप कर सकते हैं, और उस ग्रीवांस को कितने जल्दी रिजॉल्व करना है ये भी पार्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल का। तो एक एफिशिएंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना, यू कैन ऑलवेज राइट दिस पॉइंट। मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बता रहा हूं कि गवर्नेंस में अगर आप कहीं पर भी क्वेश्चन आता है, कोई किसी भी, इफ इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यू कैन राइट अ पॉइंट ऑन इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल, क्योंकि ग्रीवांस रिड्रेसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी। जब तक आपकी ग्रीवांस को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसको टाइम लिमिट में रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती है और ना ही अकाउंटेबल हो सकती है। इसके बाद वी कैन राइट की यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, embracing technology can enhance the efficiency and accessibility of public service definitely we have। आपको पता है इंटरनेट के आने के बाद से, स्मार्टफोन यूज होने के बाद से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली जो है काफी ईज किया है इन इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्लीमेंटिंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट इज एंश्योर्ड इन दी सिटीजन चार्टर। तो यहां पर ये क्या करता है, सिटीजन को इनेबल करता है। हम लोगों को क्या करना है, फर्दर टेक्नोलॉजी को और इंटीग्रेट करना है इन दी सर्विस डिलीवरी, इन दी ग्रीवांस रिड्रेसल। डिफरेंट जो स्टेप्स हैं ऑफ गवर्नेंस, हर प्रोसेस में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी इंक्लूड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम काफी ज्यादा अब सरल हो गया है, आप इजिली टैक्स फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो है बहुत, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पहले ऑफिसर से इंटरेक्ट करना पड़ता था, लीस्ट इंटरेक्शन विद ऑफिसर्स है नाउ, बिकॉज सारे चीज जो है वो ऑटोमेटेड है, ऑन अ सिंगल पोर्टल है। तो ये सब चीज जो है आपके सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करते हैं, एंड डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस। तो यहां पर हमने बोला। इसके बाद क्या है, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड आउटरीच। वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम सिटीजंस को they don't know कि what is a citizen charter, what quality of service they can expect from an organization, in how much time their work is going to be completed। तो इस तरह की चीजों को सिविल सोसाइटीज के द्वारा, इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको आउटरीच करना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, तभी जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इवन अ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वेल डिफाइंड सिटीजन चार्टर, लेकिन अगर सिटीजंस को ही नहीं पता है तो ऑब्वियसली उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू रेज क्वेश्चंस, दे आर नॉट गोइंग टू सी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, उसके अकाउंटेबिलिटी को वो देख नहीं पाएंगे। तो इसी कारण सिटीजन को अवेयर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप पॉइंट बना सकते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली सिटीजन चार्टर को टाइम के साथ, विद द टाइम, सर्विसेज जैसे मतलब होता है ना कि सर्विसेज का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सर्विसेज यू आर गोइंग टू चेंज दी सिटीजन चार्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्विस ऑब्सोलीट हो गया है लेकिन उसके लिए सिटीजन चार्टर बना हुआ है, तो उसको आप जो है स्क्रैप कर सकते हैं। यू कैन मेक और यू कैन रीमॉडल द सिटीजन चार्टर कि ये सर्विसेज ज्यादा रिक्वायर्ड है आप, और इसको आप टाइम लिमिट में करिए। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि सिटीजन चार्टर कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, आप इस चीज के लिए फीडबैक दे सकते हैं। व्हाट वाज योर, फॉर एग्जांपल यूजर रिव्यू। जैसे हम लोग क्या है आज के दिन में whenever we use a app we download from Play Store, तो हमें क्या रहता है, we can write review, what is the app, how the app is performing। same goes with citizen charter also। citizen charter के लिए क्या है कि आप एक ओपन फोरम बना के रखिए जहां पर citizens they can put their reviews की
पोर्टल सही से काम कर रहा था कि नहीं, सर्विस उनको कैसा मिला, सर्विस में टाइम कितना लगा। तो इस चीज पे क्या होता है कि दीज फीडबैक्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू इंप्रूव देयर सर्विस डिलीवरी। जो प्राइवेट सेक्टर में होता है सेम काम हमें करना है फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, इसी फीडबैक को लेके वो जो है अपने सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टू इंप्रूव दी एफिकेसी ऑफ सिटीजन चार्टर। तो हमने यहाँ पे सिटीजन चार्टर के बारे में दोनों पॉइंट एड्रेस कर दिया, व्हाट आर द फ्लॉज स्पेशली इन इंडिया and what are the processes or the steps that can improve the effectiveness of citizen charter. Now the last part is you need to conclude the answer. conclude करिए अच्छे से कि citizen charter जो है should not be viewed as an ultimate goal but rather as a means to achieve a larger objective. इस तरह के आप sentences use कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत effective होते हैं। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि citizen charter आपका ultimate goal नहीं है, citizen charter is just a step। अगर सिटीजन चार्टर अच्छे से इंप्लीमेंट होता है तो आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज गुड गवर्नेंस। यू में से जो गुड गवर्नेंस की तरफ हमें जाना है उस चीज को हम लोग अचीव कर पाएंगे एंड सिटीजन चार्टर इज गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन। इसके बाद आप कुछ जो आपको पता है सेकंड ARC का जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर, आप उसको भी कोट कर सकते हैं। देखिए जब भी आप गवर्नेंस का कोई भी आंसर लिखते हैं तो ट्राई टू यूज द रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड ARC। तो सेकंड ARC के रिकमेंडेशंस को आप यूज करते हैं तो आपके पूरे आंसर का इफेक्टिवनेस बढ़ता है और एक वेट बढ़ता है बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर आंसरिंग। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगेन अब आपको क्या करना है, मैंने आपको मॉडल आंसर बना दिया है। इवन आफ्टर सीइंग द मॉडल आंसर ट्राई टू राइट द आंसर ऑन योर ओन, then you can submit that answer and it will be evaluated by your dedicated mentors. And if you'll do this on a daily basis, you are definitely going to improve your answer writing. तो यही मकसद है हमारा इस सीरीज का कि आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव करे और धीरे धीरे होगा, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे आंसर आपका इंप्रूव होगा। पर आप अभी से स्टार्ट करिए और डेली अगर आप एक आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली ये इंप्रूव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।